Next is availability of water on earth. How much water is available to us? Okay, so this we are going to study now. Yes, what do you think? How much water is available? Yes, beta. Anyone? How much water do you think it is available to us? जी हरमीत बोलिए बेटा. Yes, Harmeet. Ma'am, 71%. Very good. 71% of the earth is actually covered with water. Okay. तो अगर इतना ज्यादा पानी है, you can see also जब आप अर्थ का डायग्राम बनाते हो, okay, whenever you draw for the drawing of the earth, तो mostly आप उसको blue show करते हो, ऐसे ही है ना, right? That marks 71% of the earth is covered with water, so that's why we called earth as watery planet also, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो है अर्थ के ऊपर क्या प्रेजेंट है? पानी प्रेजेंट है. ओके, सो आउट ऑफ दिस, राइट, अगर मैं देखूं कि कितना पानी जो है वो मेरे लिए अवेलेबल है, या ओके, या ये किस किस फॉर्म्स में अवेलेबल है. सो इफ वी टॉक अबाउट आउट ऑफ दिस वाटर 97.5% ऑफ वाटर, जो अर्थ का पानी है उसमें से 97.5% ऑफ दिस वाटर इट इज एक्चुअली देयर इन द ओशंस एंड सीज. तो ये कैसा वाटर है? इट इज द वाटर ऑफ द ओशन एंड द सीज. ओके, एंड यू नो, यस, you know this water, the water of the ocean and the sea, it is actually salty. Salty है या saline water है जिसको हम consume नहीं कर सकते. So that means this water, this 97.5% water, it is not of any use to us. ठीक है, हमारे लिए कोई यूज नहीं है इस 97.5% वाटर का, because that is there in the ocean and the sea bodies, that is salty, that is saline, and we can't use this water. Okay, now remaining left is 2.5. अब हमारे पास 2.5% जो वाटर है वो रह गया है. अब वो देखते हैं हमारे पास कैसे अवेलेबल है. So if I draw a diagram like this, okay, जिसमें से मैंने क्या कहा है कि ये जो 97.5% आपका है पानी, that is sea water और the ocean water. Okay, अब इसमें से मेरा कितना रह गया है? that is 2.5%. this 2.5% जो रह गया है, okay, इसमें से भी ये जो वाटर है that is further divided into two parts. The first is 1.7. The first is 1.7 and the second is 0.8. Okay, अब इसमें से भी जो हमारा 2.5 है उसको भी हम क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें से let's do the division like this is 0.8 and this is 1.7%. Okay, अब ये 1.7% जो वाटर है that is actually stored as the water of ice caps and glaciers. Again that is not available to us. ये भी हमें अवेलेबल नहीं है, ये फॉर्म भी जो 1.7% रह गया है ice caps and glaciers and snow की फॉर्म में, ठीक है, that is present. Again that is of no use to us. The remaining 0.8%. See how much is the amount? 0.8% of the water, that is actually the fresh water. और ये फ्रेश वाटर जो है वो किस किस फॉर्म्स में हमारे पास है? ग्राउंड वाटर, रिवर्स एंड पॉन्ड्स. ओके, तो यू कैन सी इतना सारा पानी होने के बावजूद भी हमारे पास अवेलेबल वाटर कितना है? दैट इज ओनली 0.8. ओके, हाँ जी, इज दिस क्लियर बेटा?
So this 0.8% water is actually the fresh water that is stored or that is present as the groundwater, river or lake, ponds में जो आपका water है. Okay. तो हमारे लिए एक्चुअली जो पानी आता है that is almost equal to negligible amount. ठीक है, तो आप खुद ही देख सकते हो कि कितना हमारे पास पानी अवेलेबल है फॉर द कंजप्शन, राइट? So very less water is available to us for the consumption values. So that's why the United Nations, they have decided for the water consumption amount. Okay, so they have decided the water consumption amount a minimum of 50 liters. This is the minimum amount per person. तो यूनाइटेड नेशंस ने क्या रेकमेंड किया हुआ है कि पर पर्सन के लिए एक दिन में okay 50 liters of water per person per day it should be used for doing the daily life things जैसे drinking है, cooking है. Okay, so this much amount of water it should be used in order to prevent the wastage of water. पानी नहीं waste करना चाहिए हमें. We should not waste water at all because you can see a very less proportion of water is available as fresh water that we can use. Okay, तो ये 50 liters nearly 2.5 buckets बन जाती हैं. So if you are using more than that, that means you are doing the water wastage. So 22nd March is actually observed as the World Water Day. March is observed as the World Water Day. Okay. And year 2003 it was observed as the International Year of Fresh Water in order to make people understand about the importance and its amount of fresh water. तो आप देख सकते हो fresh water जो है वो बहुत कम है. ओके, तो पर्सन को पीपल्स को ये याद करवाने के लिए ओके in order to remind them as a remembrance okay that the water it is actually declining day by day. So year 2003 it was observed as International Year of Fresh Water in order to make people understand about the importance of fresh water. Okay, is this clear? Now if we carry out an activity in order to show that how much water is actually available, ठीक है, ये तो मैंने आपको ratios में बता दिया 97.5 है, 2.5 है. Okay, if we think more, ठीक है, अगर हम और ज्यादा सोचें कि मेरे पास कितना पानी जो है वो available हो सकता है. Okay, so here is one activity for you. You will be doing this activity at your homes also. The activity is you have to take a bucket of water. Okay, आपने एक मीडियम साइज्ड बकेट लेनी है, उसमें नियर अबाउट आपका 20 लीटर्स जो है वो वाटर डल जाएगा. Okay, so let's say I am taking a bucket here that is a medium sized bucket. तो इसमें मैंने वो 20 लीटर्स जो है वो वाटर ले लिया हुआ है. Okay, now from this bucket that is having a water of 20 liters, you will be taking, अब इसमें से आपने क्या करना है, you will be taking a medium sized cup. Okay, जो बाथ मग होते हैं ना आपके, you are having bath mugs at your home, तो इसमें से आपने जो है वो एक बाथ मग जो है वो फिल कर लेना है. Okay, fill a bath mug from this 20 liters of water. ये जो आपका मग है it is actually representing the fresh water. ये जो आपका बाथ मग है that is actually representing the total fresh water on earth.
टोटल में आपका आइस कैप्स का भी आ जाता है, ठीक है, टोटल बोला है मैंने, टोटल फ्रेश वाटर, दैट मीन्स वी आर रिप्रेजेंटिंग हियर 2.5%। ये मैं 2.5% की बात कर रही हूं यहाँ पर, आर यू गेटिंग? ये 97.5% है आपका पानी। ओके, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर। इसमें से मैंने क्या किया है, 97.5 ये रह गया, बाकी 2.5 मैंने सेपरेट कर लिया। ओके, आर यू गेटिंग? समझ आ रहा है? This is actually the 2.5% and here in this now we are left with 97.5%. अब ये जो 2.5% है इसमें टोटल फ्रेश वाटर आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर एंड द फ्रेश वाटर एज ग्राउंड वाटर, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स। ओके, राइट। अब मैं फर्दर इसको और सेपरेट करूंगी, आई विल बी सेपरेटिंग मोर। अब आपने क्या लेना है, यू विल बी टेकिंग अ ग्लास टम्बलर। व्हाट यू विल बी टेकिंग? यू विल बी टेकिंग अ ग्लास टम्बलर, ठीक है। तो आपने ये ग्लास टम्बलर जो है वो फिल कर लेना है यहाँ तक, ये सारे आपने फिल करने हैं ऊपर तक, ठीक है। यू विल बी फिलिंग अ ग्लास टम्बलर। ओके, तो इस पानी में से अब आपने ग्लास टम्बलर जो है वो फिल कर लेना है। नाउ दिस इज एक्चुअली द यूजेबल वाटर दैट इज प्रेजेंट एज ग्राउंड वाटर। ये आपका यूज वाला वाटर है, यूजेबल वाटर that is actually the groundwater. Okay, this is the usable water that is actually the groundwater. अब इसमें से भी आपने what you have to take is एक स्पून लेना है आपने, you will be taking a spoon now. Okay, you will be taking a spoon now, right? और आपने वो स्पून जो है वो इस ग्लास टम्बलर वाले पानी से फिल कर लेना है। You have to fill this spoon from the water of this glass tumbler. Now this water in the spoon, इसमें से जो पानी है वो आपको शो कर रहा है the water in the form of rivers, lakes. This is actually the water that is present in the rivers and the lake. तो can you imagine हमारे पास कितना पानी आया है? अगर मैं एक बकेट के अकॉर्डिंग देखूं तो हमारे पास कितना पानी आया है? जस्ट अ स्पून। तो हमारे पास इतना ही पानी अवेलेबल है जिसको हम क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं। ओके, राइट। सो ये जो पानी है दिस इज एक्चुअली द सॉल्ट वाटर, द सलाइन वाटर ऑफ द सीज एंड ओशन दैट वी कांट यूज। ओके, और जो हमने लास्ट वाले लिखे हैं रिवर्स एंड लेक्स वाले जो वाटर हैं, this much amount of water it is actually available to us. Okay, right? अब इतना, या ये जो मैंने फ्रेश वाटर लिखा है इसमें से फ्रेश वाटर में से आपका आइस ग्लेशियर्स में भी स्टोर्ड है, तो ये भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। द ग्राउंड वाटर जितना आप उसमें से ले जाओगे ग्राउंड वाटर में से पानी, तो वो भी क्या करता जाएगा, डिप्लीट करता जाएगा। एट द एंड वी आर लेफ्ट विद रिवर्स एंड लेक्स वाटर। तो आप वो देख सकते हो एक स्पून भर के है आपके पास, that's it. Okay, so all these forms we can't use them. ये दोनों तो हमारे लिए कोई यूज नहीं है जो भरे भरे हमने रखे हुए हैं। Okay, they are of not use to us. आइस कैप्स ग्लेशियर्स की फॉर्म है और ये जो है वो रिवर्स एंड ओशन, सीज एंड ओशंस की फॉर्म है, दैट इज नॉट अवेलेबल टू अस। हमारे पास बस इतना पानी है। ओके, इज दिस क्लियर? तो दैट इज नियरली अप्रोक्सीमेटली जो आपके स्पून में आता है 0.006% आता है, राइट? द वाटर दैट इज अवेलेबल टू अस दैट इज नियरली 0.006%, राइट? चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्म्स ऑफ वाटर। अब कौन कौन सी डिफरेंट फॉर्म्स हैं पानी की, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है इस टॉपिक में भी।
So the various forms of water are, हाँ जी, कौन कौन सी forms है बेटा? The water, it can exist in 3 different forms. Yes, you can give your answer in the chat box. What are the different forms of water? So very good. Water, it actually exists in 3 physical states. 3 physical states में जो आपका पानी है वो exist करता है, and these states they can be readily interconverted. ठीक है, आप इन states को interconvert कर सकते हो. कैसे कर सकते हैं? आइदर बाय हीटिंग और कूलिंग. आप हीट करके या उनको ठंडा करके कूल करके जो है इंटरकन्वर्ट कर सकते हो. ओके, नाउ दीज 3 फॉर्म्स आर एक्चुअली द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, तो ये 3 फॉर्म्स हैं जिसमें हमारे पास पानी जो है वो अवेलेबल है, राइट? जहां पर मैं सॉलिड फॉर्म में क्या कहूंगी, दैट दिस इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्नो एंड आइस. तो आपकी सॉलिड फॉर्म पानी की कौन सी है? इन विच इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्नो एंड आइस ऑन द टॉप ऑफ द ग्लेशियर्स. ठीक है, आइस टॉप्स, आइस कैप्स है. ठीक है, जो आपके ग्लेशियर्स हैं, माउंटेन्स हैं, राइट, दे ऑल फॉर्म द सॉलिड फॉर्म ऑफ द वाटर. लिक्विड फॉर्म में वाटर की फॉर्म आ जाती है, द वाटर दैट इज प्रेजेंट इन द ओशन, सीज, लेक्स, ponds. Okay, underground water, the groundwater that is available, underground water or groundwater. And what is the gaseous state of water? Gaseous state में air, water vapors हैं air में. ठीक है, the water vapors that are present in the air, it forms the gaseous state of the water. ओके, तो जब स्नो मेल्ट कर जाएगी, जब आप स्नो को हीट करोगे तो वो लिक्विड स्टेट में चली जाएगी, दैट विल बी स्टोर्ड इन द ओशंस. जब आप इस ओशन वाटर को हीट करोगे तो वो वाटर वेपर्स में चेंज हो जाएंगे. ओके, अगर आपने वापस आना है तो जो वाटर वेपर्स हैं उनको ठंडा करवा लो तो वो लिक्विड में चले जाएंगे, और ठंडा करवाओगे, कूल करवाओगे तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड स्टेट. ओके, नाउ इन ऑल दीज प्रोसेसेस, you know, the amount of water that is present on the earth is constant. यही है ना, जो मर्जी हो, जिस मर्जी फॉर्म में जो आपका वाटर है that is present, at the end the amount of the water that is present on the earth is constant. Okay, तो ये constant कैसे रहता होगा? That means there should be circulation of the water from the earth surface to the atmosphere and from the atmosphere back to the earth. ओके, जो पानी अर्थ में है वो दोबारा ऊपर जाता है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से जो पानी है वो दोबारा नीचे आ रहा है अर्थ में. ओके, सो दिस मार्क्स द कॉन्टिन्यूअस अमाउंट ऑफ द वाटर टू बी द कांस्टेंट वन. तो जो आपकी पानी की अमाउंट है वो इस अकॉर्डिंग क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है. एंड दिस साइकिल इज नोन एज, बेटा क्या कहते हैं हम इस साइकिल को? यस, व्हाट वी कॉल दिस साइकिल एज? Very good. We call this as water cycle. Okay. So we will be discussing about the water cycle and the various processes that are involved in it. So what is water cycle? So water cycle is the continuous circulation of the water. ठीक है, जो आपका पानी है वो continuously क्या कर रहा है? Circulate कर रहा है. So that is the continuous circulation of the water. कहाँ से जा रहा है आपका पानी? अर्थ की सरफेस से या वाटर बॉडी से? From the earth's surface, and there are water bodies also.
from which the water it is getting circulated. Okay. अब वाटर बॉडी से और जो अर्थ सरफेस से पानी कहाँ पर जा रहा है? एटमॉस्फेयर में, टू द एटमॉस्फेयर, जहां पर एटमॉस्फेयर में वो कंडेंस होके क्या बना देता है? क्लाउड्स फॉर्म करता है. ओके. वो क्लाउड्स जो हैं जब हैवी हो जाते हैं, दे विल बी बर्स्टिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ रेन. ओके. एंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर से वापस आता है बैक टू द अर्थ सरफेस. ओके. सो दिस इज नोन एज वाटर साइकिल. तो अर्थ की सरफेस ये आ सकता है एज रेन, स्नो, हेल. ओके. सो दिस इज द वाटर साइकिल. So in this way the amount of water on the earth is constant. ठीक है. ऐसे जो आपका पानी का अमाउंट है वो कांस्टेंट रहता है अर्थ पे. ओके. चलिए अब देख लेते हैं वाटर साइकिल. यू हैव डन इन योर प्रीवियस क्लासेस आल्सो. तो वाटर साइकिल के प्रोसेस में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से फिनोमिना इन्वॉल्व होते हैं, तो सबसे पहले जो प्रोसेस आता है इवेपोरेशन. जो पानी है वो इवेपोरेट होता है. ठीक है. वाटर वेपर्स की फॉर्म में ऊपर जाता है. सो ऊपर जाके इट अंडरगोज द फिनोमिना ऑफ कंडेंसेशन. ओके. इट अंडरगोज द फिनोमिना ऑफ कंडेंसेशन. कंडेंसेशन के बाद जब वो पानी वापस आता है, इट इन्वॉल्व्स द फिनोमिना ऑफ प्रेसिपिटेशन. ओके. प्रेसिपिटेशन का मतलब ये रेन, स्नो और हेल की फॉर्म में जो पानी है वो नीचे आ रहा है. ओके. देयर आर सम अदर प्रोसेसेस आल्सो. एक तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, दैट आल्सो हेल्प इन द इवेपोरेशन. ठीक है. तो पानी को इवेपोरेट करने में, ठीक है, जो लैंड से ये इवेपोरेशन हो जाएगी फ्रॉम द सी, सी में से, एंड लैंड से इवेपोरेशन कैसे होती है? थ्रू द एनिमल्स एंड द प्लांट्स. तो एनिमल्स दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. तो इन दीज वे the water from the sea and the land it is getting evaporated. तो बना लेते हैं वाटर साइकिल. So here let's make the land surface. This is the land and this is the sea. ओके. तो ये ओशन है और ये ओशन की सरफेस लेयर है. एंड दिस सरफेस लेयर इट विल बी फॉर्मिंग द सरफेस वाटर. ओके. दिस सरफेस लेयर विल बी फॉर्मिंग द सरफेस वाटर. राइट. लैंड पे आपके पास क्या है? देयर आर ट्रीज, प्लांट्स. ठीक है. तो प्लांट्स जो है दे विल बी अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. तो प्लांट्स ने ट्रांसपिरेट किया, जब एक्सेस वाटर को रिमूव किया, दैट विल बी रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर. ओके. सो दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड्स. पानी ठंडा हो जाएगा. ठीक है. So that will form the clouds. Similarly, the animals, they will be doing the process of respiration. In this process, the water is released to the atmosphere. Okay, the water is released to the atmosphere. And the surface water of the ocean
by getting the heat of the sun, by getting the heat of the sun, it is getting evaporated. तो इवेपोरेशन से क्या होगा, वाटर वेपर्स बनेंगे, जब वो कंडेंस हो जाएंगे ऊपर जाके, ओके, देन दे विल बी गिविंग यू द क्लाउड्स. क्लियर? हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? नाउ दिस इज योर अंडरग्राउंड अर्थ सरफेस. तो यही पानी जो है जब वो नीचे आएगा इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल एंड स्नो, ओके, तो ये वाटर जो है फिर वो नीचे आएगा अगेन, इट विल मूव बैक टू द वाटर बॉडीज, राइट, एंड ऑल्सो दिस वाटर, हेल पता ना आपको क्या होता है बेटा? जब स्नो की फॉर्म होती है, ठीक है, वाटर जो है जब वो आइस्ड फॉर्म में गिरता है, दैट इज कॉल्ड एज हेल. ठीक है, तो यहाँ पर हम तीनों फॉर्म्स ले रहे हैं, एंड हेयर द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन इज देयर. विच प्रोसेस इज देयर? प्रेसिपिटेशन. Here the process of precipitation is there. Now this water, it will go into the underground. This water, it will go into the underground. Okay. And this is known as seepage. क्या कहते हैं इसको? Seepage of water. What we call this as seepage of water. So this is about your water cycle. तो इसमें हमने सारे जो अपने फिनोमिना हैं वो डिस्कस कर लिए हुए हैं. इवेपोरेशन है, ऊपर जाके कंडेंसेशन हो जाएगी. So here water vapor condenses, and if they condenses, they will be forming the clouds. So cloud formation is there. See, there are three processes that are involved in the water cycle. ये कौन-कौन से processes हैं? Evaporation है, condensation है और precipitation है. ठीक है? Evaporation में क्या होता है? जो आपका water है वो evaporate होगा, यानी कि water vapors में convert हो जाएगा. किससे गर्म होगा वो? जो आप में सन है, ठीक है, द सन इट विल बी प्रोवाइडिंग इट हीट. तो जो सरफेस वाटर है, जो ओशन की सरफेस पे पानी है, वो सारा किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा? वाटर वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाएगा. ठीक है, फिर वो जाएगा ऊपर. जो वेपर्स हैं जब वो ऊपर जाएंगे तो वो ठंडे हो जाएंगे. तो जो ये वाटर वेपर्स कंडेंस हो गए तो ये इन्होंने क्या बना देना है? क्लाउड फॉर्मेशन करनी है. द क्लाउड फॉर्मेशन इज देयर. ओके, सो ऐसे ही जो आपका पानी है, राइट, in the same way the surface water it will be getting evaporated, right? तो उससे क्या होगा? जो cloud formation है वो होती जाएगी, and the clouds they will be becoming heavier and heavier. ठीक है, तो ये आपके clouds जो है वो heavy होते जाएंगे, right? When they get heavy they will burst out. तो वो burst out कर जाते हैं in the form of rain, hail and snow. Okay, rain तो आपको पता ही है, बारिश, water droplets जब गिरती हैं. स्नो भी आपको पता है. हेल का होता है द सॉलिड फॉर्म ऑफ द आइस. ठीक है, जिसको आप गड़े कहते हो. ओके, सो दैट इज द अनदर फॉर्म इन विच द वाटर इट मूव्स टू द अर्थ सरफेस. तो ये कौन सा प्रोसेस है? प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस है. ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन. तो प्रेसिपिटेशन से जो आपका पानी है वो नीचे आ रहा है, इट इज गेटिंग सीप्ड. सीपेज, SEEPAGE, सीपेज ऑफ वाटर. तो जब ये पानी नीचे सॉइल में जाएगा, ठीक है, दैट विल बी फिलिंग योर ग्राउंड वाटर. प्लांट्स ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जब करते हैं वो भी वाटर वेपर्स रिलीज करते हैं. हम एनिमल्स जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं तो वहां से भी जो वाटर वेपर्स हैं वो रिलीज होते हैं.